میرے عزیزوں، آج ہمارے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے جیزس دا کنگ آف کنگز، یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ ٹائٹل خداوند یسوع مسیح کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کتنے ٹائٹل ہیں یسوع مسیح کے لیے جو ہم ان کو دیتے ہیں؟ کس کس نام سے ہم پربھو یسوع کو جانتے ہیں؟ کس کو پتا ہے؟ سن آف مین، ابن آدم، آدم دا پتر، ٹھیک ہے۔ اور کس نا تو اسی جاننے ہیں پربھو نو؟ شانتی دا راج کمار، پرنس آف پیس۔ اور کس نام تو اسی پربھو نو سادنے ہاں یا پربھو جانے جاندہ ہے؟ مکتی راجا، مکتی دین والا، مکتی داتا، مالک، اور ساریاں چیزاں دا مالک ہے۔ اور ابن الفا اور اومیگا ہے، ابن داؤد ہے، اور انہوں عورت دی ونشا بھی کہندے نے، سیڈ آف دا وومن، جڑا عورت دی وچوں پیدا ہویا۔ کوئی بھی عورت دے وچوں پیدا نہیں ہویا، سارے مرد دی نسل کہلاؤندے نے، لیکن پربھو یسوع ایک واحد ہستی ہے جڑا عورت دی نسل دے وچوں پیدا ہویا۔ انگلش نو کہندے the seed of the woman۔ صرف ایکو ہستی جن نے ابلیس دے سر نو کچلیا ہے، جدا وعدہ باغ عدن چ ہی ہو گیا سی کہ عورت دی نسل دے وچوں ایک اٹھے گا جڑا شیطان ابلیس تیرے سر نو پھائے گا، تے وہ اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہے، پربھو یسوع۔ ہالےلویا۔ اج اسی ایک ہور ٹائٹل نو ویکھاں گے، اج اسی پربھو یسوع دا ایک ہور نام ویکھاں گے، انہوں خدا دا کلمہ بھی کیا جاندا ہے، لیکن اسی ایدے تے گل نہیں کران گے، اسی گل کران گے یسوع بادشاہاں دا بادشاہ۔ ہالےلویا۔ اے یسوع دا ایک نام ہے، بادشاہاں دا او بادشاہ ہے، جدا تخت ایتھے لگیا ہویا ہے، اور واقعی اس کا تخت آج یہاں پر لگا ہوا ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ اور کلام میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہم پڑھا کرتے ہیں، جو کلام پر دھیان کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ ہالےلویا۔ اور میرے عزیزو، جو کوئی بھی کلام پر دھیان کرے گا، جو کوئی کلام کو سیکھے گا، ایک دن یاد رکھیے گا برکت اس شخص کی ہوگی۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے یسوع راجاؤں کا راجا، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور یہاں پر اس حوالے میں جو ابھی بھائی بندر نے پڑھا، ہم نے کیا متی کی انجیل 2 باب میں کیا دیکھا؟ پہلی آیت میں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے۔ کہاں سے آئے؟ پورب سے وہ آئے تھے، پورب سے آئے اور یروشلم تک پہنچے، اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یسوع کی پیدائش کے اوپر جو دھرتی کے دانا لوگ تھے، ان کو وائز مین بھی کہا جاتا ہے۔ مجوسیوں کو کیا کہتے ہیں؟ وائز مین، بدھیمان یہ شخص تھے۔ اور بڑی ٹریڈیشنز یہ ہیں کہ یہ راجہ تھے، یہ بادشاہ تھے، جو بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ایک گیت بھی تو ہم گاتے ہیں، ہم 3 بادشاہ مشرق کے، مشرق سے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر آج جب وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو ایک ستارہ چمکا ہے۔ ستارہ ہمیشہ علم نجوم میں جو نجومی ہوتے ہیں وہ ستاروں کے مطابق چلتے ہیں، اور یہ ستارہ
जो निकला था ये एक बादशाह की बहुत बड़ी निशानी थी। और ये लोग इल्म नजूम से वाकिफ थे, ये समझ रखते थे, ये वक्तों को जानते थे कि कब क्या होगा, और इन्होंने खुदा के कलाम का भी इल्म हासिल किया था। कहा जाता है कि ये मजूसी जो थे ये फारस की सल्तनत से आए, बेबीलोनियन ये लोग होते थे जो कि इल्म नजूम, सितारों के इल्म को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और इनका बॉस था एक शख्स फारस के अंदर ही, उसका नाम दानिएल है। हालेलुया। और वो खुदा का नबी था। और बादशाह ने क्या किया था कि दानिएल को इन सब मजूसियों के ऊपर रखा था कि दानिएल तेरी हिकमत सबसे उत्तम है, और तू मेरे बाद तू होगा, और तू ही दानाई से मेरी सल्तनत को चलाया करेगा। तो अब जब दानिएल को बादशाह ने इतना बड़ा रुतबा दिया, तो अब लोग उसकी कही हुई बातों को, खुदा के कलाम को अब पढ़ते हैं, सीखते हैं। और इसीलिए वो ऐन वक्त पर उस सितारे को देखकर जो उनके आगे आगे चला और उसी जगह जाकर ठहर गया जहां पर वो बच्चा था, जहां पर वो बादशाह था। तो इसलिए ये मजूसी जो हैं सही जगह पर सही वक्त में सही बादशाह को सजदा करने के लिए आए। और लिखा है कि जो हेरोदिस बादशाह था वो सुनकर घबरा गया। क्यों घबरा गया हेरोदिस बादशाह? उसको तो खुश होना चाहिए था कि बादशाहों का बादशाह अब आ गया है। वो घबरा इसलिए गया कि वो अभी तैयार नहीं था। वो घबरा इसलिए गया कि अब उसकी सल्तनत उससे छिन जाएगी। और फिर उसने तस्दीक की, उसने सब जाजकों को बुलाया, जो फकी और फरीसी थे उनको बुलाया, जो धर्म की शिक्षा देते थे, जो जानते थे टाइमों को, वक्तों को और कलाम से वाकिफ थे, उन सब को इकट्ठा करके कहा कि मुझे बताओ कि इस बादशाह की पैदाइश किस शहर में होनी चाहिए, किस जगह पर होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया? उसकी पैदाइश कहां पर होगी? बैतलहम के अंदर। तो मेरे अजीजों, वो लोग बैतलहम में गए और बच्चे को वहां पर पाया, क्योंकि लिखा है उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा, जो मेरी कौम इस्राएल को आगे लेकर जाएगा, जो उनका रहनुमा होगा, उनका हाकम होगा, उनका बादशाह होगा। और यीशु मसीह मेरे अजीजों दुनिया में आया और वो एक बादशाह था। और आज हम देखते हैं कि लोग दुनिया, पूरी दुनिया एक अच्छे बादशाह का इंतजार कर रही है। वो चाहते हैं कि कोई अच्छा लीडर आए, कोई ऐसा बादशाह आए जो इंसाफ के साथ चले, जो सच्चा हो, जो वफादार हो, जो हमें इस मुश्किल से, गुर्बत से, लड़ाइयों से, झगड़ों से हमें आजाद करे। आज सारी दुनिया एक बादशाह के इंतजार में है। बल्कि मैं कहता हूं मजहब भी जो हैं दुनिया के, वो भी एक बादशाह के इंतजार में हैं। आपको पता है मसीहत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है इस्लाम, मसीहत के बाद। और वो भी एक बादशाह के इंतजार में हैं कि वो आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। और वो कहते हैं कि उसका नाम क्या है? इमाम महदी। उसके बाद इस्लाम के बाद दूसरी बड़ी कौम हमें कौन सी नजर आती है? हिंदू। हिंदू धर्म में भी एक कल्कि अवतार का इंतजार हो रहा है।
وہ کہتے ہیں کہ یہ وشنو کا اوتار ہے، اس کا 10واں اور آخری اوتار، اور یہ کل یگ کے اندر اندھیرے کو ختم کرے گا اور انصاف لے کر آئے گا۔ وہ ان کا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دھرم آتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہودی جو ہیں، جوڈائزم، اور ان کا بھی وشواس ہے کہ ہمارا مسیحا آئے گا، اور مسیحی بھی انتظار میں ہیں کہ اب یسوع جو پہلے آیا تھا، 2000 سال پہلے آیا تھا، وہی یسوع جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جس طرح تو نے مجھے بادلوں پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح بادلوں سے واپس آتے ہوئے دیکھو گے۔ مسیحیوں کا یہ ایمان ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ وہ بادشاہ جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے میرے عزیزو، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ کیونکہ کلام کسی اور کی گواہی دیتا ہی نہیں ہے۔ آپ توریت کو کھول کے دیکھ لیں، آپ زبور کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ نبیوں کے صحیفوں کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی بندے کی گواہی ملے گی، اور وہ ہے پربھو یسوع، جس کا نام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور انجیل اس کی گواہی نہیں دیتی، بلکہ انجیل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ واقعی ہی اس دھرتی پر آ گیا 2000 سال پہلے، اور اس نے ایک بہت بڑا مقصد پورا کیا۔ میں اس بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا جو صرف حکومت کرے۔ بادشاہ وہ ہے جو صرف ملک پر حکومت نہ کرے، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں حکومت کرے۔ ہاللیلویہ۔ اور پربھو یسوع وہ ہیں جو آج ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 2000 سال پہلے وہ انسانوں پر حکومت کرنے کے لیے، اسرائیل میں حکومت کرنے کے لیے وہ نہیں آیا، بلکہ اس نے ہمارے دلوں میں حکومت کی۔ اور صرف اسرائیلیوں کے دلوں پر نہیں، اس نے پوری دنیا کے لوگوں میں حکومت کی، ان کے دلوں میں وہ آ گیا۔ اور بھائی نے گیت میں بڑا خوبصورتی سے کہا کہ جب اس کا ڈیرا ہمارے دل کے اندر اور ہم اس کے اندر بسیں گے تو پھر آنا جانا لگا رہے گا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں، تو جو کچھ بھی میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے ہمارے دلوں پر راج کیا تھا، وہ ہمارے دلوں میں بادشاہ بن کے بیٹھ گیا، اور اب اس کا وقت آئے گا کہ وہ 1000 سال کے لیے اس دھرتی پر بادشاہی کرے گا۔ 1000 سال کے لیے، یاد رکھیں، اسی دھرتی کے اوپر، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نئے یروشلم میں۔ ہاللیلویہ۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے، ہم کیسے ثابت کریں کہ یسوع وہی بادشاہ ہے جس کا وعدہ توریت نے، زبور نے، نبیوں کے صحیفوں نے، نبیوں کی کتابوں نے اور انجیل مقدس نے کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے، آج ہم بہت سارے حوالہ جات پڑھیں گے جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہی بادشاہ ہے جس کا وعدہ باغ عدن سے شروع ہوا، اور بہت سارے نبیوں نے اس کے بارے میں بتایا۔ کون سی کتاب سب سے پہلے آئی؟ توریت کی جو کتاب تھی، جو موسیٰ نے لکھی، وہ سب سے پہلے لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اور آئیں ہم اس میں سے ایک گواہی پڑھتے ہیں جہاں پر اس مسیحا کے بارے میں، آنے والے یسوع کے بارے میں ایک نبوت ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں گنتی 24 باب اس کی 15 آیت سے ہم پڑھیں گے، 15 سے 19 تک ہم اس کو پڑھیں گے۔
गिनती 24 बाब उसकी 15 आयत से 19 आयत, और गौर से सुनिएगा। इसमें क्या है? एक बंदा है जिसका नाम है बालाम, और ये जब देखता है कि बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकल कर आ रहे हैं, तो अब इन्हें पता चल गया है कि अब ये हमारे मुल्कों में से होकर गुजरेंगे और ये हमारे साथ लड़ाई करेंगे। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हम इनको ख़त्म कर देते हैं। और वो मुआब का एक बादशाह था जिसका नाम बलक था, और उसने एक खुदा के दास को, एक नबी को जो खुदा से बातें करता था, उसको लालच देकर चाहा कि मैं इस्राएल पर लानत करूं और इस्राएली उसी लानत के नीचे आकर मर जाएं और वो वहां तक ना पहुंचे। तो अब बलाम आ गया है पैसे लेकर। बलाम जो है उसके अंदर लालच आया, लेकिन खुदा ने उसके अंदर जो है इस बात को डाल दिया, उसकी जुबान पर इख्तियार रख लिया खुदा ने कि वो लानत ना कर सका। और अभी हम उसकी कहानी सुनते हैं। आज भी मेरे अजीजों, लोग इस्राएल के ऊपर लानत करते हैं, लेकिन इस कहानी में हम देखेंगे कि जो लानत करते हैं उनको कलाम मुकद्दस में उनको क्या कहा गया है, किस तरह से उनके साथ खुदावंद बात करता है। हम गिनती 24 बाब की 15 आयत से 19 आयत मैं कहूँगा भाई बिंदर से कि वो पढ़ें। फिर उस अपना अंगम बाग खोल के आख्या, बेओर दे पुत्र बिलियम दा बाग, उस पुरुष दा बाग ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया। क्या देखा हमने? कहते हैं कि जिसकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी हैं। मैं तो इस्राएलियों पर लानत करने के लिए आया था, लेकिन मेरी आंखें परमेश्वर ने खोली हैं। पढ़ें। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, मैं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ पर हुण नहीं। हाँ, वो कहता है मैं उन्हें देखता हूं, मैं उस बादशाह को देख रहा हूं, लेकिन अभी नहीं, दूर से वो फ्यूचर को देख रहा है। मैं ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜੇਗਾ। ਅਦੋਮ ਉਹਦੀ ਮਿਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर बलाम कहता है कि मैं एक सितारा देख रहा हूँ, और वो सितारा जो है वो उगेगा, वो राज करेगा, और कोई भी उसके आगे टिकने नहीं पाएगा। वो अपने सारे मुखालफों को हलाक करेगा। ये तौरात में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो आएगा और हुकूमत करेगा। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब वो वक्त बहुत करीब है। अभी आप देखिएगा कि इस्राएल को कौमें चारों तरफ से घेर लेंगी, और उनको बचाने के लिए यही सितारा, जिसको हम निशानी के तौर पर भी आज लगा के रखते हैं, वो आप दरख्त जो क्रिसमस ट्री है उसके ऊपर भी सितारा लगा हुआ देखते हैं, यहाँ पर भी लगा हुआ देखते हैं। तो ये कुछ बताता है, ये इस प्रोफेसी के बारे में बताता है जो यीशु मसीह के बारे में बताई गई थी कि इस्राएल में से, याकूब में से एक सितारा निकलेगा और वो मुआब की नवाही को कूट कूट कर सीधा कर देगा और सारे हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। ये खुदावंद का वादा है, ये तौरात में लिखा है। अब हम देखते हैं दूसरी, तौरात के बाद अगली किताब कौन सी है? ज़बूर।
हम देखते हैं ज़बूर में दाऊद क्या लिखता है इस बादशाह के बारे में। और दाऊद कितने हजार साल पहले था यीशु से? 1000 साल पहले था। और वो 1000 साल पहले आने वाले बादशाह के बारे में क्या लिखता है, हम दूसरा ज़बूर पढ़ेंगे। याद रखिए, आज कौमें ऐसा ही कर रही हैं। मैं सच आपको बता रहा हूं। आप न्यूज़ पढ़ के देखने, इस्राएल के इर्द गिर्द की कौमें उसको निगल जाना चाहती हैं, उसको खा जाना चाहती हैं। और इस किताब में ज़बूर दाऊद, हजरत दाऊद लिखते हैं कि ये सब कुछ होगा। देखते हैं दूसरे ज़बूर में। ਕੌਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਅਰ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। हाँ जी, यहोवा तो दे मसीह दे खिलाफ धरती दे राजा उठ खड़े होए। तो क्या कहते हैं? ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡੀਏ। हालेलुया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀਏ। ਅੱਜ ਇਸਰਾਈਲ ਟੌਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਡਾਲੀਏ। 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲਿਓਂ ਲਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਸੀਜੋਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। हालेलुया। आज लोग प्रभु को, यीशु मसीह को बाप का बेटा नहीं मानते। वो कहते हैं कोई बाप का बेटा नहीं है। लेकिन हजरत दाऊद 1000 साल पहले कहते हैं कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और हम जब 25 दिसंबर को यीशु मसीह के पैदा होने की ईद मनाते हैं, तो आसमान पर कहा गया था कि आज तू मुझसे पैदा होया। क्या लिखा है? रूहुल कुद्दस की कुदरत मरियम तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस, वो जो पाक पवित्र बेटा पैदा होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और दाऊद भी इस बात की गवाही देता है। आगे, ਮੇਤੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇਰੀ ਮਿਲਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਂਗਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੇ ਰਾਜਿਓ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਆਈਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਭੈ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ ਮਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਝਟਪਟ ਉੱਠੇਗਾ। ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मेरे अजीज़ों, आज जो प्रभु यीशु में पनाह ले लेते हैं, आज जो अपना उसे अपने दिल के अंदर समा लेते हैं और उसके दिल में आ जाते हैं, वो धन हन। आप धन हैं, आप मुबारक लोग हैं, क्योंकि आपने अपने कान यीशु मसीह की तरफ लगाए हैं। आपने अपनी आंखें उस बादशाह की तरफ लगाई हैं जो आपको बचाएगा। हालेलुया। आप मुबारक हैं, आप उसके चुने हुए हैं, आप अलग किए हुए हैं।
क्योंकि वक्त करीब है और खुदामंद बदला लेने के लिए आ रहा है, अजर देने के लिए आ रहा है, हमारे कामों का हिसाब करने के लिए वो आ रहा है। एक हम और बात सीखेंगे। दानियेल नबी के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे। दानियेल की कब्र आज ईरान के शहर सुसा के अंदर है। और अगर आप देखना चाहें, आप इंटरनेट में या ईरान के शहर सुसा में जाकर देखें, दानियेल नबी की कब्र वहाँ पर मौजूद है और उसने एक किताब लिखी है, उसको कलाम मुकद्दस में दानियेल की पोथी या दानियेल की किताब कहते हैं। और दानियेल को एक बड़ा खुदा ने एक गिफ्ट दिया था, वो ख्वाबों की ताबीर करता था। वो लोग जो विजन्स देखते थे वो उनको बता देता था कि इस ख्वाब का, इस रोया का मतलब क्या है। ये दानियेल का गिफ्ट था। और दानियेल ने एक विजन देखी, दानियेल ने एक रोया देखी जो परमेश्वर ने उसे दिखाई। और वो क्या लिखता है, हम देखेंगे दानियेल 7 बाब उसकी 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। और दानियेल नबी प्रभु यीशु से 600 साल पहले धरती पर आया था। और क्या लिखता है, उसने ख्वाब देखी, उसने रोया देखी और रोया के अंदर वो कुछ चमत्कार देख रहा है, वो एक बादशाह को देख रहा है। और हम देखते हैं कि वो बादशाह कौन सा है। पढ़िए जी 13 और 14। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ। हाँ, कौन आया? एक इंसान की तरह। कहता है मैं स्वर्ग में मेरी आंखें चली गई थी, मैं जो रोया देख रहा था, मैं जो ख्वाब देख रहा था, वो मुझे स्वर्ग में ले गया। और मैंने क्या देखा कि एक मनुष्य आया है, एक इंसान जैसा कोई शख्स आया है और वो बादलों पर बैठकर प्रभु खुदावंद यहोवा के तख्त के सामने वो लाया गया है। और आगे क्या? ਅਤੇ ਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੀਕ ਅਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਰ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਈ ਸਭੇ ਕੌਮਾਂ ਅਰ ਲੋਕ ਅਰ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟਲੇਗਾ ਨਾ। आमीन। दानियेल यहां पर देख रहा है कि उसका राज कभी भी खत्म नहीं होने वाला। और उसने यहां पर प्रभु यीशु को देखा है, क्योंकि बादलों की सवारी करके आज तक और कोई मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा। हालेलुया। और फिर मेरे अजीजों, बहुत सारी नबूवतें हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जड़ियां प्रभु यीशु दे बारे दसदियां ने कि वो आएगा और राज करेगा, वो यरूशलेम बनाएगा। लेकिन असी इन्हीं पर ही हम बात करेंगे। और अब हम देखेंगे कि जब वक्त पूरा हो गया, जब खुदावंद का मुकर्रा वक्त, जब उसने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजना था, जब वो वक्त पूरा हो गया, तो फिर हम क्या देखते हैं? हम लूका 1 बाब और उसकी 26 आयत में देखेंगे कि जो कहानी थी, जो नबूवतें थी, वो आज इस दिन पर पूरी हुई हैं, जिसको हम 25 दिसंबर या क्रिसमस का दिन कहते हैं। लूका 1 बाब उसकी 26 आयत से 33 आयत तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है और देखते हैं किस तरह से होती है। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਯੂਸਫ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। अभी मरियम की मंगनी सिर्फ यूसुफ के साथ हुई थी। और ਅਰ ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰੀਅਮ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਧਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਅਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਰੀਅਮ, ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਰ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ना होवेगा। हालेलुया। कहाँ पर वो राज करेगा? याकूब के ऊपर। और याकूब कौन है? इस्राएल है। तो यीशु मसीह धरती पर इस्राएल पर राज करने के लिए आएगा, क्योंकि कलाम इस बात की बार बार गवाही देता है मेरे अजीजों। इसलिए किसी और राजा, किसी और मसीहा का हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आया था, जिसने हमारे दिलों पर राज किया, वही इस्राएल पर फिर राज करने के लिए आएगा। और ये वही राजा है जिसका वादा बागे अदन में किया गया था। अब हम ये देखते हैं यीशु मसीह के शागिर्द उसको क्या कहते हैं। अमाल पहले बाब की 6 आयत को हम पढ़ेंगे। रसूलां दे कर्तव्य पहला बाब और 6 आयत। यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग प्रभु यीशु के साथ रहते थे, उसके जो 12 चेले थे और उसकी बातें रोज बरोज सुनते थे, वो यीशु के बारे में क्या बात करते हैं। रसूलां दे कर्तव्य यानी अमाल पहला बाब उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं। ਸੋ ਜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, क्या पूछते हैं कि प्रभु यीशु, क्या तू अभी इस्राएल को राज देने के लिए अभी आया है कि बाद में तू आएगा। वो पूछ रहे हैं, उन्हें पता है कि प्रभु में राज करना है, लेकिन अब वो अभी थोड़ा शक में हैं कि क्या अभी है कि बाद में तू आना है। इसके अलावा भी प्रभु यीशु जब सलीब पर जान देने से पहले वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने उसका ऐसे ही इस्तकबाल किया था जैसे राजा का करते हैं। क्या किया था उन्होंने यरूशलेम में जब यीशु आया था गधी के बच्चे पर बैठकर? तो क्या किया था? होशाना के नारे लगाए थे। और हम इसको पढ़ते हैं, ये भी जकरिया नबी के बारे में एक भविष्यवाणी थी जो जकरिया 9:9 में है, जकरिया 9:9 में है, और लिखा है, ए बिन्नते सयून तू नहायत शादमान हो, ए सयून की बेटी, ए यरूशलेम तू बड़ी खुश हो जा, क्योंकि और तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। कौन आता है? बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है, वो सच्चा है, और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। और जो नबियों ने कहा था प्रभु यीशु ने वैसा ही गधी के बच्चे पर बैठकर गया, और लोगों ने राह में कपड़े बिछाए, किसी ने दरख्त की डालियां उतार कर उसके कदमों में बिछाई और कहा कि यही इस्राएल का बादशाह है। यहूदी जो फकी फरीसी वहाँ पर आए थे, इससे बड़ा गुस्से हुए और उन्होंने इसकी रिपोर्ट बनाकर हेरोदिस बादशाह के सामने और पिलातुस बादशाह के सामने की कि तेरे खिलाफ ये बंदा साजिश कर रहा है और ये कहता है कि अब से बादशाह मैं हूँ। और हम क्या देखते हैं, जब यीशु पिलातुस के पास गया तो यीशु ने, पिलातुस हुक्मरान था उस वक़्त इस्राएल के ऊपर, और यीशु को कचहरे में खड़ा किया और पिलातुस उससे कहता है, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो यीशु ने कहा, तूने खुद कह दिया है, हाँ मैं यहूदियों का बादशाह हूं। यीशु ने इनकार नहीं किया, इकरार किया उसके सामने, हाँ मैं हूं। और आपको पता है कि पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस ने लिख दी सजा कि इस बंदे को क्या दी जाए? सलीबी मौत दी जाए।
और जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया तो उसके ऊपर एक किताबचा लिख कर लगा दिया गया, एक बोर्ड उसके ऊपर लिख कर लगा दिया गया। और क्या पिलातुस ने उसके ऊपर लिखा? यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, यह लिखा गया था उसके ऊपर। और फिर फकी फरीसी यहूदी इकट्ठे होकर आए, पंचायत लेकर आए, कहते पिलातुस, ये तूने गलत लिखा है, ये यहूदियों का बादशाह नहीं है, तू ये लिख कि ये अपने आप को कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। तो पिलातुस ने क्या आगे से जवाब दिया? उसने कहा कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, ऐसे ही रहेगा कि ये यहूदियों का बादशाह है। और ये बात यूनानी, लातीनी और अरामी जुबान में, 3 जुबानें जो उस वक्त मशहूर जुबानें थी, उन सब में लिखा गया। और बहुत से लोगों ने रास्ते में आते जाते पढ़ा कि ये बादशाह है। लेकिन यीशु ने पिलातुस से कहा था, पिलातुस मेरी बादशाही इस जमाने की नहीं है। तो फिर किस जमाने की बादशाही है? कहता है तू ना घबरा, मैं तेरी सीट को छीनने के लिए नहीं आया, मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। और अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं लोगों के दिलों में राज करूं। लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं इस धरती पर और पूरी कायनात पर राज करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर राज करेगा। हमारे दिलों पर उसने 2000 साल पहले से ही राज करना शुरू कर दिया है। मैं आपको एक बड़ी खास आयत पढ़ाना चाहता हूं। पतमस का जजीरे पर कौन गया है और कितने लोग उसके बारे में जानते हैं? पतमस का जजीरा, भाई हाकम ने वहां पर जाकर एक गीत भी लिखा था पतमस के जजीरे के ऊपर, पतमस का टापू जो है। और वहां पर यीशु का एक चेला था, एक शागिर्द था जिसका नाम यूहन्ना था, जिसको यीशु बहुत प्यार करता था। वो हमेशा यीशु के साथ साथ रहता था, उसकी बातों को गौर से सुनता था। और प्रभु ने भी जो कहा था कि जो कलाम पर ध्यान करता है वो भलाई देखेगा। और यूहन्ना को ये भलाई देखना मिली। उसने यीशु मसीह को अपने जलाल में आते हुए देखा, उस पतमस के जजीरे पर विजन्स में देखा। उसने प्रभु यीशु को रोया में देखा। हम पढ़ेंगे मुकाशफा 19 बाब उसकी 11 से 16 आयत। प्रकाश दी पोथी 19 बाब 11 और 16 आयत, 11 से 16 आयत तक हम यहां पर ये देखेंगे कि वो यीशु मसीह को देख रहा है विजन्स के अंदर और रोया के अंदर। मैं आकाश ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਠਾ। कौन देख रहा है? कौन कहता है? यूहन्ना कह रहा है। ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। हालेलुया। सफेद घोड़ा उसने आते हुए देखा। फिर ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ वफादार ਅਤੇ सच्चा सदाਉਂਦਾ है। हाँ, उसको क्या कहा जाता है कि वो वफादार है। और यीशु वाकई वफादार है। इससे बड़ी वफादारी और कोई नहीं कि कोई अपनी जान किसी के लिए कुर्बान कर दे। वो वफादार है और वो सच्चा है। हालेलुया। आगे, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो धर्म दे नाल न्याय और युद्ध करता है। वो लड़ाई भी करता है तो इंसाफ के साथ लड़ाई करता है। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ। उसके सर के ऊपर बहुत सारे ताज हैं। किसके ऊपर ताज होते हैं? बादशाह के ऊपर। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उसका एक नाम लिखा हुआ है ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। हाँ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। देखो, घोड़ों पर जो आसमान पर आज वफादार चले गए हैं, खुदावंद के लोग जो उसमें सो गए हैं, वो घोड़ों पर बैठकर प्रभु यीशु के पीछे पीछे आएंगे, इस बादशाह के पीछे पीछे आएंगे। आगे, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਚਬੂਚੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਅਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और वो नाम क्या है? बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। ये नाम जो है वो लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक पट्टी। आपने देखा कि कभी कभी कोई कंपटीशन होता है तो हम एक सैश पहनते हैं, तो उस सैश के ऊपर नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदामन। और मेरे अजीजों, सब नबी और यीशु मसीह के शागिर्द और पौलुस रसूल इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह खुदामंद है और हमें वफादार होकर रहना है। हम एक दो हवाले पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। पहला तिमोथियस 6 बाब उसकी 13 आयत से 15 आयत तक पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस 1 तिमोथी 6 चैप्टर उसकी 13 से 15 आयत तक सुनिए। पौलुस रसूल ने बहुत सारे ख़त लिखे हैं मेरे अजीज़ों। उसने सबसे बड़ा हिस्सा जो है बाइबल का इस बंदे ने लिखा है, और हम देखते हैं कि वो हमें क्या नसीहत करता है, क्या सिखाता है। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪੈਂਥੀਜੁਸ पिलातुस के सामने पक्का करार कीता सी। हाँ, जिसने इकरार किया पैंतुस पिलातुस के सामने, उसने कहा था हाँ मैं बादशाह हूँ। आगे, पक्का करार कीता सी, गवाह करके तैनू तगीत करदा हाँ भई तू साडे प्रभु यीशु मसीह दे प्रकाश होण तੀਕ ਆਪਣੇ फर्ज ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਵਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ सर्व शक्तिमान है, राजियां दा राजा अते प्रभुआं दा प्रभु है। हालेलुया। कहता है तिमोथी उसका शागिर्द था, और उससे कहता है तिमोथी अपने आप को पवित्र रखना, दागदार ना होने देना, जो ईमान तुझे मिला है उसे कायम रख और पवित्रताई में चल, क्योंकि वो राजों का राजा, वो बादशाहों का बादशाह आएगा और वो चाहता है कि वो तुझे बेदाग देखे। हालेलुया, हालेलुया। और आज प्रभु यही वचन हमें भी देता है। वो कहता है तुम्हें मैंने मुफ्त मुक्ति दे दी है, अब उसको संभालना तुमने है पवित्रताई के ज़रिए से। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, हम एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे। खुदावंद हमें कहता है मुकाशफा रेवलेशन 1 बाब उसकी 4 से 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रकाश दी पोथी 1 अध्याय 4 तो 8 आयत तक। और ये हवाला हमें कलीसियाओं को, चर्चिस को ये पैगाम देता है कि हमने अब क्या करना है जब यीशु हमारा मुक्तिदाता है। तो ਲਿਖਤਮ ਯੋਹਾਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਾਜਕ ਬਣੀਏ। ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ परकरम जुगो जुग होवे, आमीन आमीन। वो खुद ही राजा नहीं है, बल्कि उसने वो राजाओं का राजा है और उसने हमें भी अपने जाजक और राजा मुकर्रर किया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु जब धरती पर हुकूमत करेगा तो आप भी उसके साथ बैठकर राज करेंगे। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इस बात को, इस बरकत को जो यीशु हमें देना चाहता है, इस मुक्ति को जो उसने दे दी है और इस राज को जो देना चाहता है, इस पर गौर करें। वक्त बहुत करीब है और ज़बूर 2:8 में लिखा है, मुझसे मांग, खुदावंद कहता है मुझसे मांग तो मैं कौमों को, उम्मतों को तेरी मिरास के लिए तेरे हाथ में कर दूंगा और ज़मीन के इंतहाई हिस्से मैं तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। खुदावंद ये हमसे वादा करता है। वो कहता है मुझसे मांग। वो एक बहन ने, रोमिका मसीह ने क्या गीत गाया है, मैं उथों मंगना है जिथों राजे भी मंग दे, जिदे दर तो मंगने तो कंगाल नहीं संग दे। हम उससे मांगे तो वो मुल्कों को, धरतियों को हमारे कब्जे में, हमारी मलकियत में दे देगा। उससे मांग के देखें, उसकी तरफ तवज्जो करके देखें, उसके आगे घुटने टेक कर मांगे। वो आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। हालेलुया। और मैं कहता हूं कि वक्त को ज़ाया ना करें और आगे बढ़ते जाएं। खुदा वो है, वो खुद आसमानों पर ही राज नहीं करना चाहता, बल्कि वो पूरे आसमान को, वो अपनी पूरी बादशाही को वो धरती पर ले आएगा नए यरूशलेम की सूरत में। हालेलुया। और आए हम उससे मांगे और वो हमें बरकत देगा, वो हमें आज़ाद करेगा। जब वो अपनी बादशाही में आएगा तो हम उसके दिल में होंगे, हम याद किए जाएंगे। हालेलुया। डाकू जो सलीब पर था और डाकू जो मरने वाला था, डाकू जो इसके बाद जहन्नुम में जाने वाला था, उसने उसी वक्त यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो उसने क्या कहा था उस डाकू ने? उसने कहा, प्रभु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। और अगर आज हमारी जिंदगी उस डाकू की तरह है, अगर आज हमारा गिरेबान हमें पापों से भरा हुआ नजर आता है, शर्मिंदगी आती है अपने आप से, तो यीशु के पास आ जाएं। अगर वो डाकू को माफ कर सकता है, हमारे पाप उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो कहता है मेरे सामने आ, मुझसे बात कर। अगर तेरे गुनाह किरमजी हों, लाल हों, काले हो गए हों, तो मैं उन्हें बर्फ की तरह सफ़ेद कर दूंगा और माफ़ कर दूंगा। हालेलुया। ये हमारा महाजाजक है, ये यीशु है जो हमसे प्यार करता है और हमारे प्यार की खातिर उसने सलीब पर जान दी है, अपना लहू बहाकर हमें ख़रीदा है। और आज मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम कहता है अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनते हो तो अपने कानों को भारी मत कर लो। सच कह रहा हूँ, वो वक्त आएगा, लोग पीटेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, खुदावंद माफ कर दे, मैं अभी तौबा करता हूँ। और लेकिन भाई ने एक गीत गाया कि उस वक्त कोई तौबा नहीं होनी जब उसने इंसाफ करने के लिए आना है। उस वक्त कोई तौबा नहीं, आज वक्त है। अपना जीवन उसको दे दें। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको रात के डरावने ख्वाबों से आज़ाद करना चाहता है। शैतान अगर आपको सताता है, यीशु आपको उसके शिकंजे से निकालना चाहता है। अगर आप कर्सिस के नीचे हैं, लानतों के नीचे हैं, नशे के नीचे हैं, यीशु आज आपको आज़ाद करना चाहता है। उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, वो आपके दिल में आ जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।